Bismillahirrahmanirrahim. Hi, my dear students. How are you? Hope you are all fine. And I hope you will be enjoying this subject known as biology. And today we want to discuss what? Definitely the next lecture of chapter number 11, bioenergetics, and it will deal with the analysis of what? Structure of chloroplast. So to understand this very structure, let's move to the whiteboard. Yes, my dears, you know very well कि हम आपके लिए हमेशा के लिखते हैं एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड में हम देखने वाले हैं कि what sort of information and knowledge you should always keep in your mind to score maximum marks in the Harvard and to achieve your final destination, right? So, and then we shall understand where this particular organelle is most abundant, and then we will observe its number per unit per millimeter square, and then we will see how many chloroplasts can exist per cell, and then we will observe, understand the detailed structure of this very great organelle, that is the only organelle that is going to capture sunlight and convert solar energy into the calorie energy. We want to start with definition, right? Organelle of the plant cell. Organelle of the plant cell that is used to impart color, ठीक है, to the plant cell is known as what? The plastid. We call it what? Plastid. And you know very well that there are three types of plastids. Number one, chromoplast. Number one is chromoplast. And then number two is leucoplasts. And finally, number three is chloroplast. राइट तो क्लोरोप्लास्ट मेरे पास कौन सा प्लास्टिड है? दैट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर is called as chloroplast. And what is meant by the term leuco? Leuco means white. तो जहां भी आपको प्लांट बॉडी में वाइट, मिल्क वाइट और सेमी मिल्क वाइट कलर नजर आता है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू leucoplasts. For example, if you look at the radish or if you look at the turnip, so these particular substances, they are basically milk white. They are very, very rich in leucoplasts, and their chief function is storage of the food, right? तो ये basically storage of the food में इस्तेमाल होते हैं. On the other hand, being green, these particular chloroplasts, they are used to capture sunlight. They are used to capture what? The sunlight. And once light is captured, it can be consumed to synthesize what? Carbohydrates. Now, what should be the job of what? Chromoplasts. So answer is very simple. Chromo means color. I think you have read this thing in chapter number 4. Whenever we use the term chromes mean color. So, आप करें क्या स्टूडेंट्स कि कलर पैलेट में से पाकिस्तान के फ्लैग का रंग निकाल दें. मीन्स ग्रीन एंड वाइट. निकल गया पाकिस्तान का रंग. बाकी दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग अ वेरी ह्यूज ग्रुप ऑफ plastids that is called as chromoplast. So purple, right, red, blue, pink, all these are basically making various types of what? Chromoplasts. And if you look at the function, they are chiefly playing their role as an attractant.
डिफरेंट जो फूल हैं उनके रंग को अट्रैक्ट होती हैं डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स, एंड देन दे डेफिनेटली help them in their reproduction and pollination. And then the peels of different fruits, they are also very attractive due to presence of what? Chromoplast. The only logic behind this very, you can say, artistic approach is to disperse the seeds. आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स. तो जब भी फ्रूट पक जाते हैं तो डिस्टेंस से, काफी डिस्टेंस से नजर आते हैं किसको? एनिमल्स को. तो एनिमल्स वहां तक पहुंचते हैं, फूड वो खुद खा लेते हैं और सीड्स को रास्ते में डिस्पर्स करते जाते हैं. तो यहाँ पे जो कलर है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन डिस्पर्शन ऑफ सीड्स. तो ये हमेशा सीड्स को डिस्पर्स करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं. सो ये है 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड. आज हम इसमें से जिस पर्टिकुलर प्लास्टिड को फोकस करने वाले हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड. We have discussed the definition and its various types, and now we want to study the occurrence, right? So we want to write over here what the occurrence. अगर मैं occurrence की बात करूं, my dear students, तो they are present in all parts of the plant body. ये तो हर जगह पाई जाती है. ये तो डायग्नोस्टिक फीचर है मेरे प्लांट का कि उसके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होगा. लेकिन अगर मैं एबंडेंस की बात करूं तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, दे आर मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इन द लीव्स के अंदर, राइट? लीव्स में पाए जाते हैं. सो ये भी डिस्कस हमने कर लिया कि दे आर मोस्ट एबंडेंट इन द लीव्स. अब हमने करना स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे. ये है डायग्राम ज़ाहिर सी किसी प्लांट की, राइट? दिस इज अ प्लांट बॉडी एंड डेफिनेटली वी हैव प्लेस्ड इट इन अ पॉट, पोर्सलिन पॉट, मिट्टी का बना हुआ गमला जिसे बोलते हैं, उसमें लगा दिया हम लोगों ने. एंड नाउ वी वांट टू प्लक अ लीफ फ्रॉम द स्टेम and then we want to see what is basically lying inside the leaf. So look at this is a leaf, right? अब आप इमेजिन ये करें कि ये लीफ की अपर सरफेस है, राइट? और ये लीफ की लोअर सरफेस. बिल्कुल ऐसा ही होता है. अगर आप किसी लीफ को ऊपर से देखें तो वो डार्क कलर का होगा और किसी लीफ को नीचे से देखें तो वो लाइट कलर का होगा. बट वेरी कंट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन the two sides. और एक ऐसा लीफ जिसकी दोनों साइड्स में बड़ा वाज़ेह फर्क हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? बाइफेशियल लीफ, 2 चेहरों वाला. ये डार्क चेहरे वाला साइड है और ये लाइट चेहरे वाली साइड है, बाइफेशियल, राइट? इस तरह इस पर्टिकुलर लीफ की भी क्या है? 2 साइड्स, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली. और ये जो मेरे पास ऊपर वाली साइड है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, अगर मैं इस पर्टिकुलर साइड को देखूं तो मुझे नजर आएगा कि इसके ऊपर एक बहुत ही फाइन, एक बहुत ही थिन सी लेयर है एक वाटरप्रूफ मटेरियल की, एंड दैट वेरी वाटरप्रूफ मटेरियल इज नोन एज क्यूटिकल. इट इज अ वैक्सी लेयर. आई थिंक कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाया था या हमने मिलकर पढ़ा था तो हमने देखा था, एक एनिमेशन भी हमने लगवाई थी आप लोगों के लिए कि जो लीफ है उसकी ऊपर वाली सरफेस बहुत ज्यादा शाइनी कैसे है. तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैक्सी लेयर दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. अब हम इस लीफ के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, इनसाइड द लीफ. जब मैं उस पर मूव करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लीफ के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ लिविंग सेल्स. लुक एट दिस, ये लेयर ऑफ लिविंग सेल. दीज पर्टिकुलर सेल्स आर डम्बल शेप्ड, दरमियान में से मोटे हैं और साइडों से पतले हैं, राइट? चलिए हम एक एनालॉजी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक बुक है, एक कार्ड या गत्ता बुक के ऊपर लगा हुआ है और दूसरा कार्ड या गत्ता बुक के नीचे लगा हुआ है. ये समझ ले मैं उसी गत्ते की बात कर रहा हूं जो ऊपर है. वो जो गत्ता बुक के ऊपर है, इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस.
इसे हम क्या नाम देते हैं? अपर एपिडर्मिस। सिमिलरली ऐसी एक लेयर नीचे भी है, जैसे बुक के नीचे गत्ता है वैसे यहाँ पे भी एक गत्ते नामा चीज प्रेजेंट है, और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं? लोअर एपिडर्मिस, समथिंग लाइक इट। दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। बट ये जो लोअर एपिडर्मिस है, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द अपर एपिडर्मिस, नॉट इन द टर्म्स ऑफ शेप but in the terms of having some very very special kidney shaped cells. Those are called as what? Guard cells. What we call them as? Guard cells. So look at this. There is no guard cell in the upper epidermis, and there are many guard cells in the lower epidermis. Right, so these are again what? Guard cells. And these particular guard cells, they have got a hole in the center, and that very hole somewhere here, we are going to label it properly. We call it as what? Stomata. Stomata. Right? We want to continue, and we don't want to waste our time in making more number of stomata. Just we want to continue with the lower epidermis, यानी कि आपकी बुक का नीचे वाला गत्ता है। अब अगर मैं आप लोगों की बुक का साइड व्यू देखूं तो वो किसके एनालॉगस हो गया? इस लीफ के साइड व्यू से। तो मुझे क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर ऊपर वाले गत्ते के नीचे मुझे क्या नजर आ रहे हैं? मीज अपर एपिडर्मिस के नीचे नजर आ रहे हैं मुझे इस तरह के फिंगर लाइक टाइटली पैक्ड सेल्स, समथिंग लाइक इट। और ये जो मेरे पास फिंगर लाइक टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? हम इतना ही ड्रॉ करेंगे, बाकी वेस्ट ऑफ टाइम है, हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे अपने टाइम को। इसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, राइट? अब इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, एंड दे आर ओवल इन शेप, फॉर एग्जांपल, although they don't have definite shape, but we can call it as oval shape, and they are basically having what? Very large intercellular spaces. And these particular cells जो यहाँ से यहाँ तक पाए जा रहे हैं, we call them as what? Spongy mesophyll cells. Spongy mesophyll cells. Although these two cells have very distinct morphology, but still one thing is common, and that is the presence of dots. Look at these dots, right? These particular dots are representing what? Chloroplast. So, number of chloroplasts are maximum in the mesophyll cells, right? And you know very well, being the plant cell, there is a very large vacuole inside. यहाँ पे vacuole है हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेंटर में, बिकॉज की प्लांट सेल, something like it. So this particular thing is called as vacuole, and this very structure is called as what? Chloroplast. Got the point? Same sort of dots are also present in what? Palisade mesophyll cell. But if you look at the number of these particular dots, they are much higher in these particular cells, right? अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास कितने होते हैं, क्या नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स पर यूनिट एरिया, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट 500,000 पर व्हाट मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में 500,000 सेल तक हो सकते हैं। अब अगर मैं इनमें से हर एक सेल के अंदर झांकूं तो मुझे पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 20 से लेके 100 तक
ये वाले डॉट्स हो सकते हैं पर सेल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने रिच हैं ये वाली लेयर्स किनमें, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम इसमें से एक इंडिविजुअल सेल को ड्रॉ करते हैं और देखेंगे इस इंडिविजुअल सेल के अंदर हम फर्दर क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस माय स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मीसोफिल सेल। ये मेरे पास एक मीसोफिल सेल। आपको पता है कि हमारे पैलिसेड मीसोफिल सेल में भी और स्पंजी मीसोफिल सेल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एंड यू नो वेरी वेल कि हमने डिस्कस किया था कि दीज पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट दे आर बेसिकली लाइंग इन पेरिफेरल पोजीशन। ये साइडों पे प्रेजेंट होते हैं और इसके सेंटर में यू नो वेरी वेल कि यहाँ एक बहुत बड़ा क्या होता है, वैक्यूल। जाहिर है यहाँ पे हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल। और ये जो मैंने डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाई है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट्स। तो आए हम अब इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से स्टडी करते हैं। जब हमने स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और उसके बाद हमने उसकी फर्दर एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन्स, राइट। एक है इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है इसकी इनसाइड मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, राइट। मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। एंड इनर वन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, व्हाट इज इट्स नेम, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के अंदर एक खाली जगह है, दिस होल कैविटी, ये सारी जगह, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं क्लास अपनी में, आपको भी बता रहा हूं कि समझ लीजिए क्लासरूम है। इस पर्टिकुलर क्लासरूम में ऑल अराउंड वॉल्स है, नीचे फ्लोर है और टॉप पे रूफ। तो इन चार दीवारों और फ्लोर और रूफ के दरमियान में बेसिकली एक कैविटी है जहां डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हुए हैं। उस पर्टिकुलर कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा। सो कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा। अब स्टूडेंट्स क्या ये स्पेस खाली है, तो डेफिनेटली आंसर इज नो। जैसे क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ चीजें मौजूद नजर आती हैं। उनमें से एक चीज क्या है, फ्लूइड, दैट इज बेसिकली फिलिंग दिस कैविटी एंड दिस वेरी फ्लूइड इज वेरी मच रिच इन प्रोटीन्स। It is a cavity is filled with protein rich, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सूप, राइट। इसमें सूप प्रेजेंट। अब आप पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सूप में इतनी ज्यादा प्रोटीन होने की क्या लॉजिक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसी पर्टिकुलर सूप में हमारे पास चलता है डार्क रिएक्शन। तो उस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की जितनी भी एंजाइम है वो इसी पर्टिकुलर सूप में डिसॉल्व्ड होते हैं, राइट। तो स्ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से लोकेशन, बिकॉज जैसे मैंने लिखा है इसको डार्क से कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अगर आप डार्क रिएक्शन को एक और नाम देना चाहे तो वो स्टूडेंट्स क्या था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है और हम इसे नाम देते हैं, आप पढ़ के आए लास्ट क्लासेस में, केल्विन साइकिल। तो इस पर्टिकुलर केल्विन साइकिल को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी एंजाइम हैं, दोज आर डिसॉल्व्ड इन स्ट्रोमा। प्लस आप लोगों ने एक बात और बहुत गौर से सुननी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है क्या, इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, राइट, डीएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपको याद है कि हमारे इस पर्टिकुलर सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं कि जिनका अपना इंडिपेंडेंट डीएनए है,
उनमें से एक यही क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे मैं क्या पता चला स्टूडेंट्स कि ये दोनों मींस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं। लिखते हैं आप लोगों के लिए कि क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, राइट। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस के अंडर अपने नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। प्लस डेफिनेटली इनके पास अपनी अलग क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स इस पर्टिकुलर एंडोसिम्बायोट प्रोकैरियोट को क्या कर रहा है, प्रोटीन बना के दे रहा है। तो ये राइबोसोम्स दे आर बेसिकली मेकिंग प्रोटीन्स फॉर द क्लोरोप्लास्ट। तो इसका अपना डीएनए भी है और इसकी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन्स भी, राइट। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड फिल्ड कैविटी में इस प्रोटीन रिच सूप के अलावा क्या है। तो मुझे नजर आता है कि इसके अंदर हमें मेम्ब्रेन का एक वेल कनेक्टेड इंट्रिकेटेड सिस्टम नजर आता है इसके अंदर लगा हुआ। यानी कि अगर आप लोग इसको बिल्कुल फ्लैट वे में देखेंगे तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह की लाइंस, इस तरह की डार्क लाइंस आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड नजर आती, राइट। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और फर्दर डिटेल में जाके देखते हैं तो मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये जो एरियाज मुझे क्रॉस सेक्शन में ऐसे नजर आ रहे हैं, इरेज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि ये बेसिकली स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स है। अब हम इसको 3D व्यू में जरा डिटेल से ड्रॉ के देखते हैं कि समथिंग लाइक इट, कि जैसे ये एक सॉसेज है, ये समथिंग लाइक इट, ये एक सॉसेज, इसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट है, उसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट है, उसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट। इसको समझाने के लिए मैं आमतौर पे एग्जाम्पल लेता हूं किसी चावलों वाले गोदाम की या चीनी वाले गोदाम की या गंदम वाले गोदाम की। आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर गोडाउन में, उस पर्टिकुलर गोदाम में जो आटे और चीनी या चावलों की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है हम लोगों ने, तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी स्टैक्ड मेम्ब्रेन फिल्ड वेसिकल्स हैं। मैंने आपको हमेशा बताया वेसिकल क्या होता है, आ कैविटी दैट इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल शॉपिंग बैग हो और शॉपिंग बैग को आप इन्फ्लेट कर दे, वो फूल जाएगा, नाउ इट इज अ एयर फिल्ड वेसिकल। तो यहां पे भी ये क्या है, वेसिकल्स है। ये वेसिकल दूसरे के ऊपर रखे हुए, राइट। इन पर्टिकुलर वेसिकल्स को देखा जाए तो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, राइट। ये वाले जो वेसिकल्स हैं ये क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ये आपस में कनेक्टेड है, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, ऐसे कनेक्टेड। इस पर्टिकुलर स्टैक को, इस पर्टिकुलर स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेना। तो एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है। इस पर्टिकुलर ग्रेना में से जो एक सैक है, एक सिंगल सैक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट, ग्रेनम, राइट। और ये जो चीजें इनको आपस में लिंक कर रही हैं, जोड़ रही हैं, इन्हें हम नाम देते हैं व्हाट, इंटरग्रेना। इंटरग्रेना कि ये दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली कोई चीज है, राइट। तो इस तरह की न्यूमरस स्टैक्स they are basically occupying what the lumen of what chloroplast। एक लूमन वो है जिसमें ये पर्टिकुलर ग्रेना है। अब मैं बात कर रहा हूं एक और लूमन की जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सैक के अंदर है। इट इज लाइंग इनसाइड द सैक, इट इज द लूमन ऑफ ग्रेनम। ये ग्रेनम का लूमन है। तो ये जगह क्या है, जैसे स्ट्रोमा बोलते हैं, ये बेसिकली लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो डोंट कंफ्यूज दीज टू कैविटीज विद वन अनदर। क्लोरोप्लास्ट की कैविटी का नाम है लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनम की कैविटी का नाम है लूमन ऑफ द ग्रेनम। ये दो डिफरेंट चीज। अब इस पर्टिकुलर ग्रेनम को अगर मैं फर्दर मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रेनम के बाहर एक
very special membrane. Remember my dear students, ये वाली membrane different है और वो membrane जो basically granum को enclose कर रही है वो different membrane. How it is different? Because this particular membrane have got some special additions. वो जो special additions हैं, they are playing a very key role in the light reaction. चूंकि ये वाली additions कहाँ प्रेजेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, इसलिए लाइट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रेनम में हो सकता है. राइट, आइए हम इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम लिखते हैं. नेम ऑफ दिस वेरी ग्रेनम इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड. बहुत से लोग इसे थैलेकॉइड भी बोलते हैं, बट इन फैक्ट इट इज थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. राइट, membrane that encloses the granum is called as thylakoid membrane, and this particular thylakoid membrane, it has got a lumen inside. इसके अंदर एक lumen है, there's something like it, and this particular lumen is filled with what? Different precursors of light and dark reactions. precursor का मतलब होता है mother molecules, वो यहाँ पे present है. और इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ जो चीजें अटैच हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लुक एट दिस. कोई चीज यहां अटैच है, फॉर एग्जांपल दैट स्पेन्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इसके आर पार गुजरी हुई है, इसे नाम देते हैं फोटोसिस्टम. फिर इसके साथ मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इन फोटोसिस्टम से मूव करवाएंगे फ्रॉम वन फोटोसिस्टम टू other photosystem. Say I am going to draw another photosystem somewhere here, right? तो ये एक और photosystem. अब ये दोनों के दोनों photosystems basically इलेक्ट्रॉन को किसी चैनल में से गुजार रहे हैं और इवेंचुअली इससे क्या बना रहे हैं? दो चीजें. एक को हम नाम देते हैं what? ATP, और दूसरे को हम नाम देते हैं NADPH2. अब ये जो ATP और NADPH2 है, ये कहाँ रिलीज होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, वो इस पर्टिकुलर ग्रेनम से बाहर रिलीज होगी. एटीपी भी स्ट्रोमा में आ जाएगा और NADPH2 भी स्ट्रोमा में आ जाएगा. आप ये समझ लें स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास चार्ज्ड बैटरीज हैं और इन बैटरीज को चार्ज किसने किया है? इन ग्रेनम ने. कैसे? लाइट रिएक्शन के थ्रू. लाइट रिएक्शन ने इस ATP को भी चार्ज कर दिया, मीन उसमें एनर्जी भर दी, और NADPH2 को भी एनर्जाइज कर दिया. राइट, कैसे किया, कैसे होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये वाली चार्ज बैटरीज फिर बाद में इस ग्रेनम में प्रेजेंट एक साइकिल को ऑपरेट करती है. राइट, उस पर्टिकुलर साइकिल को हम नाम देते हैं क्या? केल्विन साइकिल. राइट, और इस केल्विन साइकिल के थ्रू फिर ये वाला क्लोरोप्लास्ट हमें क्या बना के देता है? फर्स्ट ट्राइओसिस एंड देन हेक्सोसिस एंड सो ऑन. राइट, तो ये है स्टूडेंट हमारे पर्टिकुलर इस क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर. राइट, अब हम बहुत क्विकली इस स्ट्रक्चर का रिव्यू लेते हैं. ये मैंने लिया था कोई भी मेसोफिल सेल, मे बी पैलिसेड मेसोफिल और मे बी स्पंजी मेसोफिल सेल. इस पर्टिकुलर मेसोफिल सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल है और साइड पे जाहिर है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. अब हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो मुझे पता चला कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. राइट, and it has got a cavity inside that is called as the lumen of the chloroplast. And now this particular lumen is filled with a proteinaceous substance. Why proteins are there? Because we want to synthesize new enzymes for it. We want to synthesize protein for itself, and then we want to synthesize what? DNA, and we want to carry out the Calvin cycle. So all these activities demand lot of enzymes. तो ये सारे के सारे एंजाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा के फ्लूइड में सस्पेंडेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं. इसी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था सूप का. राइट, फिर इसी पर्टिकुलर कैविटी में हमें स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन नजर आती हैं. राइट, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक बहुत क्विक सी समरी अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमेज. राइट, सो लुक एट दिस. दिस इज बेसिकली अ photosynthetic cell. We call it of course a mesophyll cell, and this particular mesophyll cell, it has got a central large vacuole that is surrounded by the cytoplasm, and in this particular peripheral cytoplasm there are what? Suspended
particles or organelles known as what? Chloroplasts. Now look at the interior structure of the chloroplast. This particular chloroplast has got what? Two membranes, outer and inner. You know, for your convenience, we have drawn these two membranes with two different colors, right? And there is a space between the outer membrane and the inner membrane. And then we have a huge cavity inside. Look at its blinking. This huge cavity is called as what? Stroma. In this particular stroma, look at this, is a fluid, right? That is carrying out the process of cyclosis. इस पे घूमता रहता है. And that very fluid is, of course, the fluid of what? Chloroplast. And this particular fluid is basically very much rich in proteins, and you know all enzymes are proteins. A huge biochemical activity is taking place inside this particular what? Chloroplast. Therefore, numerous enzymes are here to run the Calvin cycle, to run the definitely light reaction, to form the what? Its own DNA. So lot more enzymes are there, and lot more enzymes are basically making it what? A gelatinous appearance. And of course, all precursors of this particular activity, they are all suspended in the fluid of the stroma. Do you think there is only a fluid? Answer is no. There are a very intricate membrane systems are present. These particular membrane systems are interlinked with one another, and these particular systems, they also have distinct appearance at certain points, and these distinct appearances are what? The stacks of membranes lying over one another, and these particular stacks, they are carrying out what? The process of light reaction. And what is happening in the stroma? Definitely dark reaction or light independent reaction. Now we want to peep inside what? The grana. These particular membranes, they are lying at over one another. They are making what? Grana. And you know, look at these membranes. These membranes are joining the two grana with one another, and they are called as what? Intergrana. Inside this particular grana, there are many granum. Single sac is called as granum. And if we want to move inside the granum, so we have to cross a special membrane, and that very special membrane is called as thylakoid membrane. Remember, this thylakoid membrane is different from the outer membrane. This thylakoid membrane has got many, you can say, additions. Addition mean इजाफा है उसके अंदर किस चीज़ों का? Different electron carriers का, electron acceptors का, electron receivers का, and donors का. और उसे हम definitely बात है further detail में study करेंगे. But हम बहुत quickly यहाँ पे देख रहे हैं कि there is a photosystem, and then there is electron transport chain, then there is other photosystem, and all these things, they are basically carrying out nothing other than the production of what? ATP and NADPH2, and then these two ATP and NADPH2, they are operating over there, what? A cycle that is called as Calvin cycle, and this Calvin cycle is giving us what? Of course, carbohydrates. I hope after this much, you can say revision and illustration, you would be able to answer each and every question that may be asked in the Lahore board. I wish you very good luck, and always keep your eyes open and brain open and book open to achieve your target. Take very good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Shahzad Wahid, and what is your name? Yes. Why I am asking this question today from you students? Because perhaps I may miss your name from my mind. So I have to repeat the things again and again. It can be possible that we may miss, it is possible that we may miss something from the lectures, and we may reinforce it on the next lecture. Therefore, it is important to say that we have missed few points from the last lecture in the structure of what? Chloroplast. So we will have a very quick review of the same, and then we move to the next topic, right? And today our topic of discussion is the photosynthetic pigments. Remember, we don't have any system after the millions of hours of research that can really convert what? Our chemical energy, our solar energy into chemical energy. After a millions of years of research, still we cannot have any system that can convert solar energy into chemical energy in a very amicable way, means that may give me that much huge fraction of products, huge types of products, maybe the trioses, tetroses, pentoses, hexoses,
and then amino acids, and then lipids and DNA, and huge, you know very well. So only thing on the face of earth that can carry out this activity is, of course, the plant and its pigments. So only thing that can absorb solar energy is the plant pigment or photosynthetic pigment. This is our chapter, and up till now I am going to show you something on the board. Up till now we have got some, you can say, tubes, and we have read this term earlier, and that term was chlorella. I think कि जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर्स में, तो क्लोरेला को हमने बोला था कि एक ऐसा प्लांट है कि जिसको हम लोग रिसर्च के लिए भी यूज़ करें, और हम इसे एक बहुत सक्सेसफुल सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव फूड के तौर पे भी काम कर रहे हैं. पर्टिकुलरली और ये फूड बनाना चाह रहे थे किसके लिए? फॉर द एनिमल्स. सो up till now we have designed, you can see, a system that is basically using what? Naturally existing organism, and that very organism is chlorella, and that chlorella is manufacturing different types of foodstuffs for us under different environmental conditions. So to understand the working mechanism and the role of, you can say, what different types of pigments, we should move to the whiteboard. Welcome to the whiteboard, my dear students, and we are going to revise structure of chloroplast very quickly. And you know very well we have got a plant, and plant is basically consisting of definitely root, stem and leaves, and our focus is basically a leaf. And you know very well leaf have got two sides. One of them is upper side. अगर आप करेक्टर भी अपने माइंड में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. और जो अदर वन वाज यस लोअर साइड. और मैंने आपको बोला था कि अपर साइड के ऊपर there is a protective coat, and that protective coat is basically what? Cuticle, and it is basically a waterproof material, waxy waterproof material. And in between these two, you can say upper side and lower side, look at this, if it is the cuticle, and then here was what? The upper epidermis, something like it, and then there was what? Lower epidermis, and lower epidermis was provided with what? Yes, exact, very fine, my dear students. हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की और गार्ड सेल्स की, right? And these two epidermal layers, they are basically sandwiching what? Definitely photosynthetic cells. And upper layer is consisting of finger-like cells and with very, very little intercellular space. On the other hand, this very layer lying beneath this layer, we were naming it as what? Palisade mesophyll. Palisade mesophyll cells. Right? So beneath this palisade mesophyll cell, there was a layer of loosely packed cells, and these cells were oval in shape, right? They have got what? Huge intercellular spaces, and these particular spaces are also known as what? Yes, air chambers. And then मैंने आपको बताया था we have got some dots in it, and our topic is basically pertaining to these dots, right? So let's move to these dots. अगर मैं इस डॉट को फोकस करूं, एक डॉट को, तो मैंने आपको बताया था it is basically chloroplast, and this very chloroplast is double membrane bound in structure, and let me allow to draw these two membranes in two different colors so that you may have more better picture or concept in your mind. So I am going to draw the upper layer as red and inner layer what? As black.
right? This very upper layer of the chloroplast is more permeable. It is more permeable, or it is freely permeable for some substances like water and CO2. And if you look at the inner membrane, outer membrane was more permeable. Let me write this thing, outer one, it is more permeable. And if you look at the inner one, this one, it is less permeable. It is less permeable. I am talking about what? The inner membrane. Now, there is a space in between the two membranes, outer membrane and inner membrane. There is a space, and then there is another space that is basically bounded by the inner less permeable membrane. And this very area, yes, definitely the same where I am rubbing my finger, this very area. This very area is called as what? Stroma. This very area is called as स्ट्रोमा. अगर आप लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपकी जो क्लास है उसमें वो कैविटी दैट इज बाउंडेड बाय द फ्लोर, रूफ एंड 4 वॉल्स, उस पर्टिकुलर कैविटी को, उस स्पेस को जिसमें आप बैठे हुए हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कैविटी, वो स्पेस क्या कहलाती है? स्ट्रोमा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेस दो मेम्ब्रेन के दरमियान में है और एक स्पेस वो है जो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड, उसे हम लोग बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और इसी के नाम देते हैं हम लोग स्ट्रोमा, राइट? इस स्ट्रोमा के अंदर हमने रिसर्च ये किया था कि स्पेसिफिक किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं, समथिंग लाइक इट, ये वाली बारीक बारीक सी मेम्ब्रेन्स हैं, और ये जो बारीक बारीक सी मेम्ब्रेन हैं इन्हें हम लोग नाम देते हैं लैमेली, LAMELLE, लैमेली। जहाँ के भी हमारे पास बहुत ही फाइन सी, थिन सी दो सरफेसेस होती हैं उन्हें हम लोग लैमेली का नाम देते हैं। इन्हीं लैमेली से मॉडिफाइड, इन्हीं लैमेली से डिराइव्ड क्या है मेरे पास? एक और यू कैन से टाइप ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज बेसिकली स्टैक्ड ओवर ईच अदर, समथिंग लाइक इट। ये ऐसा जो ऊपर स्टैक हो गया, एंड दिस वेरी स्टैक ऑफ द मॉडिफाइड लैमेली, राइट, यानी कि जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इसकी है वही इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी है, विद अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन दूसरे के ऊपर स्टैक हो गई हैं, दे आर मेकिंग नथिंग अदर देन व्हाट? अदर देन लैमेली, एंड दीज पर्टिकुलर स्टैक स्ट्रक्चर्स, these are called as grana. These are called as what? Grana. और इसमें से अगर मैं एक मेम्ब्रेन की बात करूं, एक सैक की बात करूं, एक डिस्क की बात करूं, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या? सिंगुलर, एंड नेम ऑफ द सिंगुलर थिंग इज ग्रेनम, ग्रेनम, राइट? अब जरा बात को गौर से सुनिए। पहले मैंने आप लोगों से दो स्पेसेस की बात की थी, वन वॉज intermembranous space and other was what? Stroma. Now look at this, still there is an other space, and that very space is lying inside the granum. तो 3 स्पेसेस हो गई मेरे पास। वो जो ग्रेनम के अंदर की स्पेस है, इट इज बाउंडेड बाय थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेना की मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है? लैमेली। अब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और लैमेली आपका डिफरेंस आपस में क्या है कि ये रिएक्शन सेंटर है और ये उनको आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन से कनेक्टिव्स हैं, राइट? इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फोटोसिस्टम्स का। इनके अंदर जो फोटोसिस्टम 2 है वो ज्यादा है और यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 बिल्कुल नहीं है, बल्कि लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि फोटो सिस्टम क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये वो सिस्टम है दैट इज बेसिकली गोइंग टू एब्जॉर्ब
वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो हम बात कर रहे थे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी एक स्पेस है और उस पर्टिकुलर स्पेस को ज़ाहिर हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो आप बताएंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन हो, या वो कोई ऐसी स्पेस जो कोई चीज़ बनाने में हेल्प कर रही हो। मिसाल के तौर पे कि ये वाली जो स्पेस है वो क्या बनाने में हेल्प करेगी, किराना बनाने में हेल्प करेगी। और इस पर्टिकुलर स्पेस को हम कैसे पहचानेंगे, बाय द बाइंडिंग ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 किस्म की स्पेसेस हो गई, 1, 2 और 3। मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर पहले ऑर्डर में बात करेंगे तो हम मूव करेंगे फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर, हम बाहर से अंदर मूव करें। तो सबसे पहले आएगी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, फिर नंबर 2 पे आएगी मेरे पास क्या स्टूडेंट, स्ट्रोमा, और नंबर 3 पे क्या आएगी, मैट्रिक्स ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखना ये है कि इस पर्टिकुलर जगहों में हमारे पास क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आंसर ये है, जो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि ये जो स्ट्रोमा है इट इज वेरी वेरी रिच, इसमें बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। खास तौर पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होने चाहिए, एंजाइम्स, जो क्या करेंगे, जाहिर है लाइट रिएक्शन से ऑब्टेन होने वाली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे टू कैरी आउट डार्क रिएक्शन, राइट। तो जितने भी डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स हैं वो चूंकि स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, तो हम ये बात बड़े वसूख से, बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब इसे डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम लाइट रिएक्शन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात होगी स्टूडेंट्स मेरे पास के स्ट्रोमा ये प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है। फिर अगर मैं आप लोगों से इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जाहिर है प्रोटॉन्स और व्हाट इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे काम कर रहे होते हैं हम इसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आप देखें एक ऐसे प्लांट को, जरा बात को गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी आप लोगों के लिए, कि अगर आप एक ऐसे प्लांट को देखें, अगर आप एक ऐसे प्लांट को देखें जो धूप में ग्रो कर रहा है, राइट, उसका कलर ज्यादा गहरा होता है एज कंपेयर टू उस प्लांट के जो शेडो में ग्रो कर रहा है। तो रीजन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, जाहिर है नंबर का। तो नंबर मीन तादाद किसकी, एक क्लोरोप्लास्ट की पर यूनिट मेसोफिल सेल वेरी कर सकती है, कहीं ज्यादा हो सकता है और कहीं कम हो सकता है। अब सवाल ये था कि ये कहाँ ज्यादा हो सकता है और कहाँ कम हो सकता है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये जो मेरे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर, मैं एक वर्ड आपकी नजर कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। जब मैं वर्ड यूज करता हूं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका मतलब ये है कि ये जरूरत पड़ने पे अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे प्लांट सेल डिवाइड हो या ना हो। मतलब ये है कि एक ही प्लांट सेल के अंदर इनका नंबर वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिमुलस पे, राइट। अगर इसके पास रेप्लिकेशनल स्टिमुलस आ गया, मींस ये डिवाइड कर सकता है, इसका स्टिमुलस आ गया, तो ये वाली ऑर्गेनल्स अपने आप को फॉर्म डिवाइड करके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। यही वाली चीज ट्रू है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी। आप जितना अपने मसल का यूज करेंगे उतने ही आप लोगों के मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे टू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ एनर्जी। तो डिपेंड कर रहा है किस पे, स्टिमुलस पे। यहाँ पर भी किस मेसोफिल सेल में कितनी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो वो डिपेंड करता है उसके स्टिमुलस पे। अब सवाल ये है कि ये वाला ऑर्गेनल खुद कैसे रेप्लिकेट कर सकता है कि जब इसके पास डीएनए का ऑर्डर ही नहीं है। तो इसका आंसर स्टूडेंट मेरे पास ये है कि ये ऑर्गेनल्स अपने पास, दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास दे हैव देयर ओन डीएनए, इनका अपना डीएनए होता है। जब कभी स्टिमुलस मिलेगा इनको तो ये अपने डीएनए को डबल करेंगे और ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। आपको ये वाली बात भी याद है कि जब भी मैं डीएनए बनाना चाहता हूं
तो जाहिर है ये यूकैरियोटिक, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ज़ाहिर है बहुत सी प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती हैं। तो उस वाले केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद देयर ओन राइबोसोमल मशीनरी एज वेल। तो इनके पास प्लस देयर ओन राइबोसोम, इनके अपने राइबोसोम्स भी होते, राइट। सो इन दो फीचर्स को रखने की वजह से ये वाले ऑर्गेनल्स अपने आप को एज पर रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ बातें थी, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर हम इसको एक क्विक सा रिव्यू देना चाहें फॉर 1 or 2 minutes, इसका ये है कि ये मेरे पास एक लीफ है, लीफ की ऊपर एक अपर एपिडर्मिस होती है और नीचे एक लोअर एपिडर्मिस है। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर आर द सैंडविचेस ऑफ व्हाट, mesophyll cells, and these particular sandwiched mesophyll cells, they have got sausage-like or ball-like structures that are green color and they can obtain energy from the sun. And these particular organelles are called as what, chloroplast. If you look at the chloroplast, they consist of course, 2 membranes. One of them is outer membrane, that is more permeable, and the inner one is less permeable, that is called as the inner membrane. In between these two is the very first space. And the inner membrane is basically bounding a matrix, so the space that is basically provided with a more proteinaceous fluid-like substance that is called the stroma. And in this very stroma, there is a suspended thallic membrane system that can be differentiated into two things. One of them is called as the lamellae, other one is called as the granum. And when different granums combine together, they give rise to the grana, right? And these particular grana can be interconnected by means of these lamellae or intergrana, right? And then this particular stroma, it is very very rich in enzymes that is essential to carry out all process of photosynthesis. And if you look at their ability, so they have got a unique ability. They can carry out their own multiplication at their own desire, and it is only possible because they have got their own DNA and their own ribosomes. So after this very quick review, let's move to the next topic that is called as photosynthetic pigments. Now we want to go to this very topic that is called as the need of the pigment. जरूरत क्या है? जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ये बात बोली स्टूडेंट्स के, हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम अब तक डिस्कवर नहीं कर सके हम लोग आफ्टर मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ रिसर्च, कि जिसमें हम लोग खुद से कोई सिस्टम बना ले कि जो फोटोसिंथेसिस के कंपेरेबल हो, नो वन। तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, प्लांट्स है, प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं जिनका एक ही यूनिक फंक्शन है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और ट्रैप करने के बाद उससे ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि वो जो एनर्जी है वो क्या थी, वो ATP थी और NADPH थी। वंस वी हैव मेड ATP and NADPH, now we can utilize it to convert or to synthesize or to make new biochemical substances that may be the carbohydrates or amino acids or lipids, blah blah blah, whatever. So it is the need कि अगर इस कुरे अर्थ पे या इस ज़मीन को अपनी फूड की मैनेजमेंट खुद करनी थी, अपने किचन को खुद से रन करना था, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक पिगमेंट। सो वो पिगमेंट क्या हो सकते थे, आई अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द नीड ऑफ व्हाट, photosynthetic pigments. And now we want to see the next thing, how we can predict, very important question, how we can predict that these particular pigments, they are really absorbing sunlight, right? हमने क्लेम तो कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ कायनात में प्लांट के पिगमेंट्स ही वो चीज़ है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट हाउ वी कैन क्लेम इट, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। लुक एट दिस, हम लोगों ने स्टूडेंट्स लिया एक लीफ और उस लीफ को हमने कर लिया चॉप। मैंने वो भी से द वर्ड चॉप, इसका मतलब ये है कि मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए और पीसेस बनाने के बाद मैंने उनको एक बीकर में डाला और बीकर में डालने के बाद उसमें ऐड कर दी क्या, अल्कोहल। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर आपने अल्कोहल क्यों ऐड की, तो इसका आंसर ये माय डियर स्टूडेंट कि जो अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक है और जो क्लोरोफिल है मेरे पास वो भी क्या है, ऑर्गेनिक। तो यू नो वेरी वेल कि ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों में ही हल होती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे हल हो जाते हैं। तो अगर मैं इनको भेजूंगा तो ये अपने साथ क्लोरोफिल को डिजॉल्व करके बाहर ले आएंगे। इसके अलावा हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी यूज़ कर सकते हैं
इस टास्क को अचीव करने के लिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल का सॉल्यूशन। राइट, आप क्या करें, आप लोग क्लोरोफिल के सॉल्यूशन को एक क्यूवेट में डाल दें। राइट, ये मेरे पास एक बहुत ही फाइन से प्लास्टिक की बनी हुई एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर एक ट्यूब होती है। ऐसे भी 1 सेंटीमीटर है और ऐसे भी ये 1 सेंटीमीटर की, इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस पर्टिकुलर ट्यूब में हम ये वाला सॉल्यूशन भर देंगे, दैट इज डेफिनेटली रिच इन क्लोरोफिल बिकॉज वी हैव डिसॉल्व्ड इट इन अल्कोहल। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने किया कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्यूवेट को एक रे की रोशनी में रख दिया। राइट, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वाइट लाइट। राइट, ये मेरे पास एक सफेद रंग की रोशनी थी। और मेरा ख्याल है कि आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल पता है, 9-10 में भी पढ़ के आए आप लोग, शायद बहुत से बच्चों ने ये वाली बात तो 4-5 में भी पढ़ ली होगी कि जो व्हाइट लाइट है ये पॉलीक्रोमेटिक होती है। वेन एवर आई यूज द टर्म पॉलीक्रोमेटिक, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं एंड यू नो कि हर कलर किसी खास वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ आपस में इकट्ठी ट्रेवल कर रही है। फिर बोल रहा हूं कि हर वेवलेंथ के साथ एक कलर एसोसिएट हो गया है और इसको हम लोग विबग्योर के नाम से बोलते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। राइट, ये विबग्योर। जब मैं इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करता हूं, इस क्यूवेट में से पास करता हूं, तो पास करने के बाद मेरे पास एक डिवाइस यूज होती है, उसे मैं बोलता हूं क्या, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है मेरे पास जो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ को मेजर कर सकता है। राइट, अब मुझे ये वाली बात पता है कि मेरे पास वायलेट से लेकर रेड कलर तक, कौन कौन सी वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं। राइट, अब जरा बात को अपने गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो तभी बात समझ आएगी आप लोगों को। मैंने क्या किया कि मैंने व्हाइट लाइट को इस पर्टिकुलर क्यूवेट में से पास किया जिसमें क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको मैंने अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ था। राइट, बात समझ आ गई। अब जब मैं उस पर्टिकुलर लाइट को इस क्यूवेट में से पास करूंगा तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, 7 की 7 वेवलेंथ्स। कितनी, 7 की 7, क्योंकि कलर थे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर विबग्योर में से ना तो मेरे पास ब्लू कलर था और ना ही मेरे पास ग्रीन कलर था और ना ही मेरे पास रेड कलर था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले 3 रंग, मैं किस किस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, रेड। इन 3 रंगों की मैं बात कर रहा हूं कि ये वाले 3 रंग यहां से एब्जॉर्ब हो गए, या अगर मैं एक और टर्म यूज करना चाहूं आप लोगों के साथ, वो क्या थी, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। या तो ये 3 रंग यूज हो गए कहीं पर और या फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गए। राइट, बहरहाल ये वाले 3 रंग अब मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर बैंड ऑफ कलर को, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलता हूं नाम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दे। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुझे ये पता चलता है कि इनमें से कौन कौन से कलर्स या कौन कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल हो सकती है या होती हैं। राइट, ब्लू इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, रेड इस्तेमाल होती है। तो सवाल ये है कि ग्रीन कहाँ चलेगी, तो आंसर ये है कि हमें कोई भी चीज उस रंग की तब नजर आती है कि जब वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अलावा बाकी सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक करे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक रेड मार्कर है, इसकी ये वाली सरफेस सारे कलर एब्जॉर्ब कर रही है एक्सेप्ट रेड।
ये रेड को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसीलिए ये रेड नजर आ रही है, राइट। ये मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ये वाली सरफेस ब्लू वेव्स को क्या करी, रिफ्लेक्ट बैक करी, या बाकी सब वेव्स एब्जॉर्ब कर रही। अब आए दुनिया में प्रेजेंट प्लांट्स को देखें, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग और ट्रांसमिटिंग एवरी वेव एक्सेप्ट ग्रीन, देयरफॉर ऑल ग्रीन सरफेसेस ऑफ द प्लांट दे अपीयर ग्रीन, राइट, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला कि इसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है और कौन कौन सी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट, क्या, नीड ऑफ द पिगमेंट, यूज ऑफ द फोटोस्पेक्ट्रोमीटर, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, एक्शन स्पेक्ट्रम, राइट। तो ये तीनों बातें अंडरस्टैंड करने के बाद, एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस व्हाट द टाइप्स ऑफ photosynthetic pigments, the types of photosynthetic pigments। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आंसर ये कि जब मैं डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स को एनालाइज करता हूँ इन दी टर्म्स ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो मुझे ये पता चलता है कि नेचर ने एक प्लांट को ये बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ में से क्या करे, एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकता हो। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, नेचर हैज बेसिकली प्लेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट पिगमेंट्स इनटू द सेम सेल, राइट, द सेम लीफ। सो let's pay tribute to the architecture of Almighty Allah and study what relation of different pigments to the wavelengths absorbed. So look at this. There are 4 different types of pigments. Number 1 is chlorophylls, right? And you know very well क्योंकि बहुत सारी types हैं हमारे पास. For example, A, then B, then C, and then D. Right? आपको ये बात पता है, हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास ज़्यादा ब्लू और रेड जोन में से क्या करती है, एनर्जी को हार्वेस्ट करती है या एब्जॉर्ब करती है। और जो दूसरी टाइप है मेरे पास, उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, केराटिनॉइड्स। और ये जो मेरे पास केराटिनॉइड्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग यू कैन से लाइट फ्रॉम येलो एंड रेड जोन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कैरोटीन्स की, CAROTENES, ये जो आपकी टीन है, जब वो वाला टीन नहीं है, ये कैरोटीन्स हैं। एंड इफ यू लुक एट इट, तो इट कैन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द रेड एंड ऑरेंज जोन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर हम फाइनली देखें तो जो हमारे पास लास्ट टाइप है पिगमेंट्स, उसका नाम क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। और ये जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के ज़ेंथोफिल्स हैं, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द येलो एंड ऑरेंज जोन्स। तो आपने देखा कि नेचर ने इन पर्टिकुलर पिगमेंट्स को कितनी सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट जोन में से लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक ऑफ कोर्स नथिंग अदर देन द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, फूड स्टफ्स, राइट। आई वाज थिंकिंग कि हम इस टाइम में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लोरोफिल को भी डिस्कस करेंगे, बट वी वांट टू हैव अ ब्रेक एंड देन वी शैल discuss structure of what chlorophyll in more detail in the next, you can say,